Hello students, in this video we are going to study today different types of graphs of simple harmonic motions. So it's a very important concept and very important from the point of view of JEE and NEET, because very often they ask questions related to graphs in JEE and NEET. Students, first of all let us understand this table. See, in this table, we have got different values of sine theta and cos theta, and minus sine theta and minus cos theta. I have written all the angles in degrees as well as in radians. In simple harmonic motion, you will very often come across angles written in radians. You see, the value of sine 0 is 0. The value of sine pi by 2 is 1. Value of sine pi is 0. Sine 3 pi by 2 is minus 1. And once again sine 2 pi is 0. So the value is repeating after 2 pi. So we say that 2 pi is the period of sine theta. If it is repeating after 2 pi, that means again after 2 pi, that means 2 pi plus 2 pi, 4 pi, the value will repeat again. So 0, sine 2 pi, sine 4 pi, all the values are same. Again if you see pi by 2, sine pi by 2 is 1. Sine pi by 2 plus 2 pi will give you 5 pi by 2. That will be again 1. So the values always repeat after 2 pi. Sine pi is 0. Pi plus 2 pi is 3 pi. So if you see sine 3 pi is also again 0. So you understand that 2 pi is a period of sine theta. Similarly, cos theta. Cos 0 is 1. 0 plus 2 pi is 2 pi. So if you see cos 2 pi is also 1. And again if you plus 2 pi here, then 4 pi. So cos 4 pi is also 1. So also for cos theta, the period is 2 pi. Cos 90 degrees is 0. 90 degrees यानी कि पाई बाई 2. अभी अगर आप पाई बाई 2 प्लस 2 पाई करोगे तो 5 पाई बाई 2 मिलेगा. तो अब 5 पाई बाई 2 में देखो फिर से वैल्यू 0 आती है. उसी तरह से पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 है, तो पाई प्लस 2 पाई यानी कि 3 पाई, तो कॉस 3 पाई की वैल्यू भी फिर से -1 आती है. तो देख लो, आप समझ लो बच्चों कि कॉस पाई का पीरियड भी, कॉस थीटा का पीरियड भी 2 पाई होता है. उसी तरह से माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा की वैल्यूज़ मिलेगी. ये तो बड़ी सिंपल है. जो भी साइन थीटा की वैल्यूज़ है उनको नेगेटिव करो तो 0, 1 का -1 हो गया, 0 का 0 ही रहेगा, -1 का 1 हो गया, 1 का -1 हो गया, -1 का 1 हो गया. तो आपको माइनस साइन थीटा की वैल्यूज़ मिलेगी और इसका भी पीरियड 2 पाई मिलेगा. इन द सेम वे, from the values of cos theta you can get the values of minus cos theta. Once you understand these values, we can plot the values. We can plot these values on the graph, and when you plot these values on the graph, you get some very interesting graphs. Let us see those graphs. Students, see this graph of sine theta. In front of us we have once again the values of sine theta and the graph. You know that sine 0 is 0. तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 0 से शुरू होती है. मैंने यहाँ पर ऊपर रिलेटिव वैल्यूज़ जो है, यहाँ पर पाई बाई 2, ग्राफ की ये वैल्यू पाई, फिर ये पॉइंट पर 3 पाई बाई 2, ये पॉइंट पर टी, देन 5 पाई बाई 2. एक सेंटीमीटर जो है इसका स्केल मैंने कैसा लिया है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस. सो दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, देयर इज़ पाई बाई 2 रेडियंस. अगेन 1 सेंटीमीटर, सो पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. और जब ग्राफ पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो आपको मिलता है टी पीरियड. तो यहाँ पर पीरियड टी कंप्लीट होता है, यहाँ पर पीरियड 2t कंप्लीट होता है. अभी इसका ग्राफ समझते हैं. चलो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यू हैव गॉट 0 हियर. देन साइन पाई बाई 2 इज़ 1, सो यू गॉट 1 हियर. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड द मिनिमम वैल्यू -1 हियर. देन यू हैव साइन 3 पाई बाई 2. साइन 3 पाई बाई 2, साइन पाई की वैल्यू जो है 0 आती है. साइन पाई इज़ 0. देन यू हैव गॉट साइन 3 पाई बाई 2 इज़ -1. सो 3 पाई बाई 2 के सामने नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पर -1 है. एंड साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की जो वैल्यू है वो 0 है, तो साइन 2 पाई की वैल्यू फिर से 0 आ गई. अब ये जो ग्राफ है इतना, वो जितना जैसा है वैसा का वैसा उठाकर इधर रख दो, तो फिर से आपको अगर ये वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा. साइन 2 पाई 0 है, तो 5 पाई बाई 2 1 है, साइन 5 पाई बाई 2, साइन 3 पाई इज़ 0, साइन 7 पाई बाई 2 इज़ -1 एंड साइन 4 पाई is again 0. So that is how you get the graph of sine pi. Now let us see the graph of minus sine theta. Now students, this blue colored graph is sine theta
and this blue colored graph is minus sin theta. This is cos theta. For the time being, let us forget cos theta and let us see this sin theta and minus sin theta. इनको सामने सामने देखो, ये अगर वैल्यू ऊपर है तो ये वैल्यू उसके सामने नीचे है, और जो वैल्यू नीचे है वो यहाँ पर ऊपर है. दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर रिफ्लेक्शंस है. बोथ आर मिरर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर. सो द टू ग्राफ्स विल लुक एग्जैक्टली सिमिलर. लेकिन अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है. एक ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा ग्राफ नीचे जा रहा है. और अगर साइन थीटा का ग्राफ नीचे है तो माइनस साइन थीटा का ग्राफ ऊपर है. फिर से यहाँ पर देखो, ये ऊपर जा रहा है साइन थीटा का ग्राफ, तो माइनस साइन थीटा का ग्राफ नीचे जा रहा है. सो यू अंडरस्टैंड दिस दैट साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा आर एग्जैक्टली मिरर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर. Similarly, now let us understand the graph of cos theta and minus cos theta. Once again, we will see this in comparison to the values of the table that we had seen just now. If you see this table, then see the values of cos theta, and against the values of cos theta, you see the graph of cos theta. Now, if you see, then the values of cos theta, what are the values of cos theta, students? So, cos theta की values क्या है? Cos 0 is 1. So, you start from 1. Then, cos pi by 2 is 0. So, at pi by 2, you are getting 0 here. Then, cos pi is minus 1. Then, at here, you get cos pi is minus 1. And then, you have cos 3 pi by 2 is 0. So, you have got cos 3 pi by 2 is 0. And finally, cos 2 pi is 1. So, once again, cos 2 pi is 1. So, this is what the graph of cos pi will look like until here, until this point. This is the graph up to cos 2 pi. Thereafter, the same graph, इतना पोर्शन हमने रिपीट करके बाजू में रिप्लेस कर दिया है. तो it is just a copy and paste. The same graph is repeated once again. So you understand cos theta is also a periodic function and the values are repeated after 2 pi. Now, इसका जो वैल्यूज़ है, ये जो ग्राफ है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ग्राफ आपको नीचे माइनस कॉस थीटा का मिलेगा. सी द रेड कलर्ड ग्राफ, इट इज़ द ग्राफ ऑफ माइनस कॉस थीटा. सो यू सी, इफ दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम. When this graph goes at the minimum value minus 1, this graph goes at the upper value plus 1. जब ये ग्राफ 1 होता है तो ये ग्राफ minus 1 होता है. So students, that is how you see the two graphs you are getting. One another interesting thing that you have to understand is very interesting. See this. अगर हमारे पास ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाओगे. लेट अस ट्राई टू कंपेयर द टू ग्राफ्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. ऑलराइट, नाउ यू आर एबल टू सी मच बेटर. इफ़ यू नाउ ऑब्जर्व दिस, ये साइन थीटा का जो ग्राफ है उसमें यहाँ पर हमने 0 डिग्रीज पॉइंट आउट किया है. दिस इज़ वेयर यू आर हैविंग 0 डिग्रीज एंड दिस इज़ पाई बाई 2. मैं एक काम करता हूँ, साइन थीटा का जो ग्राफ है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, उतना ग्राफ में काट देता हूँ. लेट मी कट दैट पोर्शन ऑफ द ग्राफ. मैंने इतना पोर्शन जो है काट दिया है. ये पोर्शन जब मैंने काट दिया तो देखो हमको क्या मिल रहा है बच्चों. अब आप देखो, यू गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन. इतना ग्राफ देखो, ये पोर्शन यहाँ से हम शुरू करते हैं और यहाँ तक जाते हैं. तो ये ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको कॉस थीटा के जैसा ग्राफ मिलेगा, एग्जैक्टली कॉस थीटा. यू सी दैट. तो ये इतना पोर्शन जो है ग्राफ का वो कॉस थीटा के जैसा है. अभी ये वैल्यू जो है यहाँ पर साइन थीटा के ग्राफ में, ये वैल्यू क्या थी? पाई बाई 2. उसका मतलब ये हुआ कि जब आप थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 बढ़ा देते हो तो आपको कॉस थीटा का ग्राफ मिलता है. So you can write the formula cos theta is equal to sin theta plus pi by 2. Simple, isn't it? Now let us play the same interesting role with cos theta. अगर मैं cos theta का जो ग्राफ है उसमें से इतना पोर्शन काट दूँ पाई बाई 2 जितना, तो मुझे क्या मिलेगा? अभी ये जो ग्राफ मुझे मिलता है यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साइकिल, उसको अगर मैं आगे कंपेयर करूँ नीचे, तो देखो you get once again a very interesting situation. This is the graph, red colored graph is cos theta, and down here the blue graph is minus sin theta. I have cut the portion of the graph from 0 to pi by 2.
तो मैंने जब कॉस थीटा में से पाई बाई टू कट कर दिया, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने कॉस थीटा को, मैंने ये जो वैल्यू है 0, वहाँ से मैंने पाई बाई टू जितना आगे शिफ्ट कर दिया, और दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैंने थीटा को पाई बाई टू ऐड कर दिया। सो कॉस थीटा में अगर मैं पाई बाई टू ऐड कर देता हूँ, सो आई एम एडिंग थीटा प्लस पाई बाई टू, कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू, देन व्हाट हैपन्स, देन आई गेट द ग्राफ ऑफ साइन थीटा माइनस साइन थीटा। यू सी दिस, कंपेयर दिस, दिस इज कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू, cos theta plus pi by 2, and this much portion is the graph of minus sin theta. See this is the graph of minus sin theta till here. तो अगर हम इतना पोर्शन देखते हैं ग्राफ का, ये देखो, आप कंपेयर करो, दोनों सेम दिखते हैं ना, दे लुक एग्जैक्टली अलाइक। सो यू आर हैविंग cos थीटा प्लस पाई बाई टू, द रेड कलर ग्राफ, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वो cos थीटा प्लस पाई बाई टू है, और नीचे जो है वो माइनस साइन थीटा है। एंड सो यू आर हैविंग दिस इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, cos थीटा प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बट यू रिमेंबर वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, cos थीटा इटसेल्फ वाज साइन थीटा प्लस पाई बाई टू, तो इसमें मैंने पाई बाई टू ऐड किया, यानी यहाँ पर भी पाई बाई टू ऐड हो जाएगा। तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या हो जाता है, साइन थीटा प्लस पाई, साइन थीटा प्लस पाई, यानी कि साइन का जो ग्राफ था, ये जो साइन का ग्राफ है, उसको मैंने पाई बाई टू ऐड किया तो मुझे कॉस थीटा मिला, और फिर से पाई बाई टू ऐड कर दूंगा, यानी कि मैं इतना पोर्शन अगर कट कर देता हूं, देखो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन वंस अगेन। नाउ इफ आई एम कटिंग दिस मच पोर्शन, देन यू रिमेंबर दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस साइन थीटा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस साइन थीटा। सो साइन थीटा में अगर मैंने प्लस पाई किया तब भी मुझे माइनस साइन थीटा मिलता है। हेंस यू गेट दिस वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला दैट माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू, और it is equal to sin theta plus pi. Now, in this graph of minus sin theta, once again, let us proceed, advance further by pi upon 2. तो मैंने फिर से pi upon 2 वाला रीजन कट कर दिया है। You understand this? 0 से pi by 2 जितना रीजन मैंने कट कर दिया। तो 0 से pi by 2 वाला रीजन अगर मैं कट कर देता हूँ, यानी कि मुझे मिल रहा है ये जो माइनस साइन थीटा का ग्राफ था, उसमें थीटा के अंदर मैं फिर से पाई बाई टू ऐड करता हूँ, तो ये जो पोर्शन है ग्राफ का, दिस रीजन ऑफ द ग्राफ, दिस मच पोर्शन इज एज इट इज इन माइनस कॉस थीटा। सो इफ आई एम यूजिंग दिस मच पोर्शन एंड इफ आई एम कंपेयरिंग डाउन देयर, सी दिस टू ग्राफ्स, दे आर लुकिंग सेम, है ना, दिस टू ग्राफ्स आर लुकिंग एग्जैक्टली सेम। दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस पाई, this is the graph of minus sin theta plus pi, and this is the graph of minus cos theta, remember that. And hence now you are having this formula, minus cos theta is equal to minus sin theta plus pi by 2. But once again remember, how did you get sin theta plus pi by 2? Actually this was nothing else but पाई बाई टू मोर देन कॉस थीटा। इसमें हमने पाई बाई टू, ये कॉस थीटा में पाई बाई टू ऐड किया था, इसलिए हम उसको कॉस थीटा प्लस पाई भी लिख सकते हैं। देखो फिर से मैं ऊपर जाता हूँ, ये जो कॉस थीटा वाला ग्राफ था उसको अगर मैं पाई बाई टू जितना एडवांस कर दूँ, वाई एक्सिस को पाई बाई टू जितना शिफ्ट कर दूँ, तो मुझे ये इतना पोर्शन माइनस कॉस थीटा का ग्राफ मिल गया। यानी कि कॉस थीटा में अगर मैं प्लस पाई करता हूँ तो मुझे माइनस कॉस थीटा मिल जाता है। ये कॉस थीटा, देखो ये कॉस थीटा का ग्राफ है, और उसमें मैं प्लस पाई कर देता हूँ कि यहाँ से मुझे जो मिलता है, इतना पोर्शन जो मिलता है वो मुझे माइनस कॉस थीटा मिलता है, ये वाला जो पोर्शन है। तो कॉस थीटा को अगर मैं प्लस पाई करता हूँ तो मुझे माइनस कॉस थीटा मिल जाता है, ठीक है। और अगर मैं साइन थीटा में, देखो साइन थीटा में मैं कितना कट कर देता हूँ, इतना रीजन कट कर देता हूँ। अगर मैं इतना रीजन कट कर देता हूँ तो फिर से मुझे ये वाला रीजन कट कर देता हूँ साइन थीटा में, यस दिस मच पोर्शन, देन वंस अगेन आई एम गेटिंग द ग्राफ ऑफ माइनस कॉस थीटा। और जब मैं ये पोर्शन कट करता हूँ तो मैं क्या कट करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं ऊपर देखो क्या कट कर रहा हूँ, मैं 3 पाई बाई 2 कट कर देता हूँ। साइन थीटा में से मैं अगर 3 पाई बाई 2 कट कर देता हूँ तो मुझे माइनस कॉस थीटा मिल जाता है। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 अगर मैं करूँगा
तो मुझे माइनस कॉस थीटा मिलेगा। इस तरह से देखो कितने सारे कंपैरिजन हम कर सकते हैं। वी कैन राइट माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 3 पाई बाई टू। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन फटाफट 2 मिनट में मैं रिवाइज कर दूँ। अभी तक मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ्स पर तो आया ही नहीं हूँ। आई एम सिंपली रिवाइजिंग with you the basic concepts of trigonometry. This is the graph of sin theta. In this graph, if I add pi by 2 to theta, then I get the graph of cos theta. And in cos theta, in theta, if I add pi by 2, then I will get the graph of minus sin theta. So I can write minus sin theta is equal to cos theta plus pi by 2, or I can write it as equal to sin theta plus pi by 2. In the graph of minus sin theta, if I add pi by 2, then I will get the graph of minus cos theta. So minus cos theta can be written as minus sin theta plus pi by 2, or it can be written as cos theta plus pi, or it can be further written as sin theta plus 3 pi by 2. Alright, now let us proceed further with displacement, velocity and acceleration graphs of simple harmonic motion. Well students, here we have the graph of displacement of simple harmonic motion. You remember the formula for simple harmonic motion. The displacement of simple harmonic motion is given as x is equal to a cos omega t plus phi. Now if x is equal to a cos omega t plus phi, and you know what is the type of graph of cos theta. If you don't remember, go back to the video, थोड़ा backward करो, बैक करो और cos थीटा का ग्राफ कैसा होता है फिर से देख लो। तो cos थीटा का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है 1 से, और 0 तक जाकर फिर -1 तक जाकर फिर 1 तक आता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos omega t plus pi by 2. Now if I multiply the value of cos with a, then a is the amplitude. So maximum value will be a, minimum value will be minus a. So that is how you get the graph of cos theta plus cos omega t plus pi by 2. Now one interesting thing here is that you know that cos is a periodic function, so the same portion is repeated here once again. But you know one more thing, that the displacement equation instead of cos you can also write as sine. If I write this equation as x is equal to a sine omega t plus phi, then this graph will change. Instead of starting from a, the graph will start from 0. It will go up to a and come back down up to minus a. Then the graph will become like this. This is the graph of sine omega t plus phi, you know that. So this is the graph of sine omega t plus phi. There has happened to be a small mistake. It has to start from 0. So it will start from 0 here, not from down here. I am sorry for this. The graph will start from 0. It will go up to a, then come back to 0, come up to minus a, and come down up to 0 here once again. So this is the graph of sine omega t plus phi. The same graph repeats after a period of 2 pi. So this value will of course be sine omega t plus phi. So students, that is how you understand that you get two possible graphs of displacement for x is equal to a cos omega t plus phi and x is equal to a sin omega t plus phi. Now remember one more thing students, that for different types of SHM, sometimes it is possible, you have two particles simultaneously performing SHMs, and these graphs also you must be able to understand. देखो ये नीचे वाला ग्राफ, ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का ग्राफ है. This is a graph of two simple harmonic motions having same omega and phi, but amplitudes are different. So students, let us understand this graph properly. You are having ultimately two simple harmonic motions having same frequency. What does that mean? And also same phi. Phi means initial phase. Initial phase means from where do they start. If you see, both the graphs are starting from amplitude. This blue colored graph represents one simple harmonic motion, red color graph represents another simple harmonic motion. जो ब्लू कलर का ग्राफ है उसका एम्पलीट्यूड ए है, और जो रेड कलर का ग्राफ है उसका एम्पलीट्यूड बी है, और दोनों पार्टिकल्स का ऑसिलेशन जो है वो एम्पलीट्यूड से शुरू हो रहा है. यानी इसका इक्वेशन जो है वो क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरे का इक्वेशन होना चाहिए x इज इक्वल टू बी, एम्पलीट्यूड बी है तो बी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होना चाहिए. दोनों ग्राफ्स एक साथ जीरो पर पहुंचते हैं, दोनों एक साथ माइनस ए और माइनस बी पर पहुंचते हैं, दोनों एक साथ फिर से जीरो पर पहुंचते हैं, दोनों एक साथ फिर से ए और बी पर पहुंचते हैं, फिर से साथ में जीरो हो जाते हैं, फिर साथ में जीरो माइनस ए माइनस बी, एंड वंस अगेन टुगेदर दे रीच जीरो, एंड वंस अगेन टुगेदर दे रीच ए और बी. सो दे आर गोइंग साइमल्टेनियसली, साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं. यानी दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और दोनों एक ही जगह से शुरू है, इसलिए दोनों का
इनिशियल फेज भी सेम है, लेकिन दोनों के एम्पलीट्यूड्स आप समझ सकते हो डिफरेंट है. सो दैट इज द ग्राफ ऑफ particles having same angular frequency, same initial phase but different amplitudes. There are still some more possibilities, let us understand them. Now see these graphs, students. If you see both the particles, yellow and red colored graphs are reaching the same height. That means their amplitude are same. Here at the bottom also they are reaching the same maximum value. So that means both the graphs have got the same amplitudes. So two simple harmonic motions having same omega and same amplitude. How can we understand omega is same? So you see both the graphs are reaching, they reach maximum positions and they reach zero at the same time. दोनों ग्राफ्स एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, इसलिए दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन इनिशियल फेज दोनों का अलग अलग है. ये रेड पार्टिकल जो है वो एम्पलीट्यूड पर शुरू कर रहा है, लेकिन ब्लू वाला पार्टिकल जो है वो एम्पलीट्यूड पर शुरू नहीं कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड तो इधर है. ब्लू वाले पार्टिकल का भी एम्पलीट्यूड ए है, लेकिन वो ए पर शुरू करने की बजाय समवेयर हियर मे बी π/4 या मे बी π/2 कहीं पर इधर पे शुरू कर रहा है, बीच में से कहीं शुरू कर रहा है. यानी इसका स्टार्टिंग फेज जो है वो सेम नहीं है, लेकिन फिर बाद में दोनों साथ में नीचे जा रहे हैं, दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं, फिर साथ में नीचे जा रहे हैं, फिर साथ में ऊपर जा रहे हैं. सो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ऊपर नीचे जा रहे हैं. सो दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का मैक्सिमम पोजीशन सेम है. सो बोथ आर हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड ऑल्सो, बट they have started at different places, so their initial frequencies, initial phase is not same. So that is the graph of two simple harmonic motions having same angular frequency and same amplitude but different initial phase. Now see these graphs, students. We are having two simple harmonic motions once again having same amplitude, means the graphs are reaching the same maximum position up and same maximum position on the other side also. So either positive amplitude or negative amplitude. Negative amplitude, negative maximum is also called as maximum position. So the two graphs are having the same amplitudes, but their frequencies are different. Now this blue colored graph starts at 1 and the red colored graphs also starts at A. Blue and red both start at A. तो दोनों का initial phase तो same है, देखो same amplitude and phi. तो बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम इनिशियल फेज, लेकिन ये ब्लू कलर का ग्राफ यहां से यहां तक आने के बाद अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, इसलिए मैंने ब्लू कलर में टी लिखा है यहां पर. ब्लू कलर का टी वो ब्लू कलर के ग्राफ का पीरियड इंडिकेट करता है. तो ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो पार्टिकल जो भी होगा उसका टाइम पीरियड इतना बड़ा है, और जो रेड कलर का ग्राफ है वो जिस पार्टिकल के ऑसिलेशन को इंडिकेट करता है उसने एक ऑसिलेशन इधर कंप्लीट किया और यहाँ दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट किया. तो रेड कलर के ग्राफ का टाइम पीरियड 2t हो जाता है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्लू कलर के ग्राफ के फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा है. तो दोनों ग्राफ्स की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट होती है, क्योंकि याद रखो द फॉर्मूला फॉर ओमेगा इज 2πf. So both the graphs are having different angular frequencies, but they are having the same amplitude and same phi. तो अभी ग्राफ के कंसेप्ट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. अब ये आगे हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, अभी हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को कंपेयर करेंगे. सी दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, and you know what is the formula for displacement? X is equal to a cos omega t plus phi, and by now you understand what does the graph of cos theta looks like. It starts at a, comes to 0, reaches minus a, comes to 0 and goes back at a. One cycle is completed, one oscillation is completed, and this is a graph of x is equal to a cos omega t plus phi. The same graph is repeated again after a period of 2π. So the dotted line indicates periodic motion, the repetition of the graph after the period of 2π. Now, you know what is the formula for velocity? You know that if you want to find out the velocity, then you will find out the derivative of this function, and the derivative of x is equal to a cos omega t plus phi, you know, it is going to be v is equal to minus omega a cos, cos will become sin omega t plus phi. Let's understand the graph of sin omega t plus phi now. Well, students, now if the displacement is x is equal to a cos omega t plus phi, then velocity is going to be minus omega a sin omega t plus phi. Minus omega a is the amplitude of the graph, and this is going to be the graph of minus sin theta. I will remind you the graph of sin theta starts from 0, goes up to a, then comes down here,
एंड उसका ऑपोजिट माइनस साइन माइनस साइन थीटा का ग्राफ नीचे से शुरू होता है ऐसा। तो ये माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का ग्राफ है और मैक्सिमम वैल्यूज जो है ओमेगा ए एंड माइनस ओमेगा ए आर द एम्पलीट्यूड्स। So this is what the graph of velocity looks like. And the velocity is also a periodic function. The dotted line, the dotted graph indicates the repetition of the velocity graph after a period of 2 pi. Now if you want to find out acceleration, you will once again differentiate the value of velocity. और अगर फिर से इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो आपको मिलेगा a acceleration is equal to minus omega square a sin will become cos omega t plus 5. तो नाउ लेट अस सी व्हाट डज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन लुक लाइक। वो फिर से कॉस के जैसा ग्राफ आना चाहिए, लेकिन कॉस का जो ग्राफ था, देखो कॉस का जो ग्राफ था वो ऊपर से शुरू करता था और ऐसे वापस ऊपर तक गया, ऊपर से नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर गया। अब हमको जो एक्सेलरेशन का ग्राफ मिलने वाला है वो नेगेटिव मिलने वाला है। ये देखो, ये जो साइन थीटा का ग्राफ था उसमें हमको एम्पलीट्यूड माइनस ए मिला था। जब हम डेरिवेटिव करोगे तो हमको वापस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए मिलेगा और माइनस और ये साइन का कॉस हो जाएगा। तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की नेगेटिव वैल्यू अगर हम लेते हैं नेगेटिव ग्राफ, तो हमें इस ग्राफ का उल्टा, ये उल्टा ग्राफ मिलेगा अपने को, इसका मिरर इमेज मिलेगा। तो देखो अभी एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा मिलता है, देखो जरा कॉस का ग्राफ कैसा है, इतना पोर्शन, और उसका उल्टा एक्सेलरेशन का ग्राफ देखो। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा मिलेगा हमको, एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और उसका ग्राफ जो है दिस इज द वे यू गेट द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन। एम्पलीट्यूड इज ओमेगा स्क्वायर ए एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। द ग्राफ स्टार्ट्स एट माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, completes one oscillation, and the dotted line indicates repetition of the graph. The period is 2 pi. Now you know that the formula for force is ma, and therefore जो भी एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा वही फोर्स का भी ग्राफ होगा। सो यू विल हैव अ सिमिलर ग्राफ फॉर फोर्स। नाउ दीज थ्री ग्राफ्स, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the graph of velocity and the graph of acceleration were obtained when the formula was x is equal to a cos omega t plus 5. Now you know that the displacement, instead of x is equal to a cos omega t plus 5, you can also write as sin omega t plus 5. And if you are writing the equation as sin omega t plus 5, then what graph do we get? Let us understand that also. So there we are. If we have the equation as x is equal to a sin omega t plus 5, then द ग्राफ इज लाइक दिस। साइन वाला ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 है तो उसका ग्राफ हमको ऐसे मिलेगा। द डॉटेड लाइन इंडिकेट्स रिपीटेशन ऑफ द ग्राफ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 पाई। यहाँ गलती से 2 पाई लिखा है, ये 4 पाई होगा और यहाँ पर 2 पाई होगा। सो यू विल हैव 2 पाई हियर, 2 पाई, एंड दिस इज गोइंग टू बी 4 पाई। हाँ, ये टी है तो ये 2t हो जाएगा। वो मैंने टी लिखा था, बराबर ही लिखा था पहले, दैट वाज टाइम पीरियड। दिस टाइम पीरियड इज टी, दिस टाइम पीरियड इज 2t. So this is the graph of displacement once again when the equation is sine instead of cos. And then obviously the velocity graph will also change. इसका डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो हम कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखो कॉस का ग्राफ मिल गया हमको यहाँ पर, ये कॉस का ग्राफ है। फिर इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अब जो साइन का ग्राफ था उसका नेगेटिव ग्राफ कैसा होगा, तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा तो उसका ग्राफ देख लो आप। अभी फिर से कंपेयर करो, साइन का ग्राफ देखो एंड कॉस का ग्राफ देखो, तो सॉरी नेगेटिव साइन का ग्राफ देखो। तो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली साइन के ग्राफ के जैसा ही होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू होता है। तो अगर साइन थीटा जो है इसे ऊपर से शुरू होकर नीचे से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। सो एक्सेलरेशन ग्राफ इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ displacement graph. And I have not drawn the graph of force because the graph of force and acceleration will exactly be the same, because the formula for force is force is ma. Force is mass into acceleration. So जो acceleration का ग्राफ है वही force का ग्राफ होगा। Again one more important thing I want to remind you once again students, if you see this graph of sine, and in the graph of sine if I cut this portion, यानी कि मैं अगर y axis को पाई बाई 2 जितना शिफ्ट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो आप देखो कॉस थीटा का ग्राफ मिल जाता है। तो मैं दोनों ग्राफ्स को सामने सामने रखता हूं और मैंने साइन थीटा के ग्राफ को कट कर दिया है, यानी कि आई शुड नॉट यूज द वर्ड कट, बट आई वुड रादर से दैट आई हैव शिफ्टेड वाई एक्सिस बाय पाई प्लस 2।
तो साइन थीटा का जो ग्राफ है, साइन थीटा के ग्राफ में अगर मैं पाई बाई 2 ऐड कर देता हूं तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा ये वाला, वो फिर से कॉस थीटा का ग्राफ मिलेगा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज अहेड ऑफ साइन थीटा बाय पाई अपॉन 2। वेलोसिटी साइन थीटा से या डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से, ये वाला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। अब इतना पोर्शन देखो, वेलोसिटी का ये ग्राफ और वेलोसिटी का ये ग्राफ एग्जैक्टली सेम दिख रहा है ना। तो वेलोसिटी जो है वो साइन थीटा से पाई बाई 2 जितना आगे है, या वेलोसिटी का फेस डिस्प्लेसमेंट के फेस से पाई बाई 2 ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पाई बाई 2 का फेस डिफरेंस होता है। अब अगर हम इसको और आगे थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो हमने पाई जितना शिफ्ट कर दिया, मैंने वाई एक्सिस को पाई जितना शिफ्ट कर दिया, यानी वाई एक्सिस में प्लस पाई कर दिया मैंने। तो जब मैंने प्लस पाई कर दिया, उसको प्लस पाई शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई फाई प्लस पाई। And what you get is the graph of acceleration. Remember, the graph of acceleration is starting from 0, goes up to minus a, up to 0, and again to plus a, and this portion. So you see this graph, keep this in mind, and मैं अभी एक्सेलरेशन का ग्राफ भी आपको दिखाता हूँ। आप इतने पोर्शन पर जरा फोकस करो और फिर एक्सेलरेशन का ग्राफ देखो। तो देखो एक्सेलरेशन का ये वाला पोर्शन और फिर से डिस्प्लेसमेंट का ये वाला पोर्शन है ना, एग्जैक्टली सेम। सो आई कैन से that acceleration is ahead of displacement by pi upon by pi। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई जितना आगे है फेज में, और वेलोसिटी के कंपैरिजन में, ये वेलोसिटी का जो ग्राफ है उसमें सिर्फ पाई अपॉन 2, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो फेज है वो पाई बाई 2 है। तो वेलोसिटी में मैं पाई बाई 2 कट कर देता हूं तो मुझे फिर से एक्सेलरेशन का ग्राफ मिल जाता है। सो आई कैन से एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन वॉट एवर वी हैव स्टडीड अंटिल नाउ। So students, these are the things I want you all to remember. You remember that as we discussed just now, velocity is ahead of displacement by a phase of pi by 2। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अगर आगे है तो डिस्प्लेसमेंट पीछे है, पीछे है यानी लैग्स, पीछे का मतलब होता है लैगिंग। सो वी कैन ऑल्सो से डिस्प्लेसमेंट लैग्स वेलोसिटी बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2। और अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कितना, ये है ना बच्चों, जेडब्ल्यू में और नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसको जरा ध्यान में रखना। एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय पाई। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई जितना आगे है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अच्छा, और वेलोसिटी से पाई बाई 2 जितना आगे है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई जितना आगे है और वेलोसिटी से पाई बाई 2 जितना आगे है, तो हम उसको दूसरी तरीके से बोलना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन से पाई जितना पीछे है, डिस्प्लेसमेंट लैग्स एक्सेलरेशन बाय पाई, और वेलोसिटी लैग्स एक्सेलरेशन बाय पाई अपॉन 2। फिर दूसरी बात, फोर्स एंड एक्सेलरेशन का ग्राफ सेम होता है क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन का फेज सेम होता है। सो वी कैन से फेज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एंड वेलोसिटी इज सेम एज द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फेज डिफरेंस कितना है, पाई, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का भी फेज डिफरेंस पाई होगा। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का फेज डिफरेंस पाई बाई 2, तो फोर्स एंड वेलोसिटी का फेज डिफरेंस भी पाई बाई 2 होगा। Now students, finally let us understand the graph of acceleration. See, if I not acceleration, sorry, energy. Now, if I consider the equation of displacement as x is equal to a cos omega t plus phi, then in this situation, the particle starts oscillation at maximum position. A से वो अपना ऑसिलेशन शुरू करता है, t इज इक्वल टू 0 पर हमारा पार्टिकल A पर था, फिर t/4 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर आता है, फिर यहाँ से वो फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, वहाँ से फिर से मीन पोजीशन पर आता है, और मीन पोजीशन से फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया उसने। तो t इक्वल टू 0 पर A पर था, t/4 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पर आया, t/2 पर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, फिर से 3t/4 पे मीन पोजीशन पर आ गया, और t पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। अब आप जानते हो बच्चों कि जो मीन पोजीशंस होती है वहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और अगर यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है तो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। हम इस आगे ये जो ग्राफ है उसमें हम एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और वो दो बार मीन पोजीशन पर आ रहा है पार्टिकल, इसलिए 2 बार उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है।
एक बार वो एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर आता है, एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव ए पर आता है. तो यू हैव अ maximum potential energy at minus A and a maximum potential energy at A. Now let us first of all remember once again the graph of displacement. This is what the graph of displacement looks like. You know that this is the graph of cos omega t plus phi. Now you know that at mean position kinetic energy is maximum, potential energy is minimum. Then the graph reaches, the particle reaches extreme position. At extreme position, the potential energy is maximum and the kinetic energy is minimum. Once again, the particle reaches mean position, and once again at mean position, kinetic energy is maximum, potential energy is minimum. Once again it reaches maximum position, extreme position, amplitude पर, तो फिर से potential energy maximum, kinetic energy minimum. अब कंटिन्यूसली आप देखो तो काइनेटिक पोटेंशियल चेंज होते रहते हैं. तो एनर्जी का ग्राफ जो है वो अब हमको ऐसा मिलेगा. अब हमारे पास दोनों सामने एनर्जी के ग्राफ का कंपैरिजन है. अब ये देखो आप, तो एनर्जी जो है यहाँ पर मीन पोजीशन पर कैसी है, मैक्सिमम, और एम्पलीट्यूड पर कैसी है, कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. अब ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है इसमें ब्लैक कलर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है और ये ब्लू कलर काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है. ये एम्पलीट्यूड वाला पोजीशन है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर हमको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलता है. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है. फिर जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर पहुँचता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए देखो ब्लू कलर का ग्राफ सबसे ऊपर पहुँच गया है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसलिए ब्लैक कलर का ग्राफ 0 पर आ गया है. फिर वापस जब पार्टिकल नेगेटिव ए पर पहुँचता है एम्पलीट्यूड पर, तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाता है. तो ये पोजीशन पर आप देखो ब्लैक कलर का जो डायग्राम है ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया और ये ब्लू कलर का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी को इंडिकेट करता है वो मिनिमम हो गया. अब यहाँ पर एक कॉस थीटा वाला ग्राफ कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी एक माइनस कॉस थीटा वाला ग्राफ कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ. तो हमने इतने रीजन में एक साइकिल कंप्लीट कर दिया. एनर्जी ने इतने रीजन में एक साइकिल कंप्लीट किया, लेकिन ऑसिलेशन तो आधा साइकिल ही हुआ है. देखो ऑसिलेशन का कंप्लीट साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन एनर्जी ने एक साइकिल इधर, पोटेंशियल एनर्जी ये ब्लैक कलर का ग्राफ है और ब्लू कलर का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी ने भी एक ऑसिलेशन इधर कंप्लीट कर दिया. अच्छा, फिर जब हमारा पार्टिकल आगे बढ़ता है और वापस वो मीन पोजीशन पर आता है तो फिर से मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. सो ब्लू कलर का ग्राफ मैक्सिमम पर पहुंच गया और ब्लैक कलर का ग्राफ मिनिमम पर पहुंच गया. और फिर वापस पार्टिकल हमारा एम्पलीट्यूड पर जाता है, तब ब्लैक कलर का ग्राफ मैक्सिमम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम. तो इससे हमको एक बात समझ में आती है कि जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तब एनर्जी के 2 ऑसिलेशंस होते हैं. और ये ब्लैक कलर का जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो टोटल एनर्जी को इंडिकेट करता है. टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए ये लाइन हमेशा सीधी रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है. टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. K of T denotes kinetic energy, U of T denotes potential energy. So this is what the graph of energy looks like. Now we had taken the formula for displacement as x is equal to a cos omega t plus phi. But what if the displacement was x is equal to a sin omega t plus phi? So here we have the energy graph for the equation x is equal to a sin omega t plus phi. In a sin omega t plus phi, the particle starts oscillating at mean position. At t is equal to 0, the particle is at mean position. t by 4 पे particle amplitude पे आ गया, फिर से t by 2 पर particle mean position पर आ गया, फिर से t by 4 पर particle amplitude पर आ गया और t एक complete oscillation पर वापस वो mean position पर आ गया. और उसका sin थीटा का ग्राफ ऐसा होता है. So this is what the graph of sin theta looks like. The particle has completed one oscillation, and you know that at extreme position the kinetic energy is minimum, potential energy is maximum. At mean position, kinetic maximum, potential minimum. Once again at extreme position, potential maximum, kinetic minimum, and once again at mean position, kinetic maximum, potential minimum. So this is the graph of oscillation. और उसके सामने एनर्जी का ग्राफ हमको ऐसा मिलेगा. तो ये जो ग्राफ था ये साइन थीटा वाला ग्राफ था. हमारे पार्टिकल ने उसका ऑसिलेशन मीन पोजीशन पर शुरू किया था, इसलिए हमारा जो शुरुआती ग्राफ है
वो काइनेटिक एनर्जी का, ब्लू कलर का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है, ब्लैक कलर का जो ग्राफ है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये अलग अलग टाइप के ग्राफ्स बच्चों जेडब्ल्यू नीट में पूछे जा सकते हैं। दिस इज आवर एनर्जी ग्राफ। द ब्लैक कलर्ड लाइन हियर इंडिकेट्स टोटल एनर्जी. Total energy always remains constant. So total energy is K of T kinetic energy plus U of T potential energy. And if you compare the two graphs, initial position पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. सो इनिशियल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. एट T/4 पार्टिकल इज एट मैक्सिमम पोजीशन, सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम. तो बराबर उसके नीचे आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम. एट T/2 द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. तो एग्जैक्टली उसके नीचे आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. अगेन एट 3T/4 द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक मिनिमम. तो एग्जैक्टली आप इसके नीचे देखिए तो पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक मिनिमम. और फाइनली जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तब फिर से पार्टिकल मीन पोजीशन पर आ जाता है. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है. तो आप एग्जैक्टली उसके नीचे देखिए तो काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल मिनिमम है. जब पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है तब एनर्जी के ग्राफ ने दो ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, पोटेंशियल एनर्जी ने. और काइनेटिक एनर्जी ने भी 2 ऑसिलेशन कंप्लीट किया है. लेकिन टोटल एनर्जी ऑसिलेट नहीं करता है. It is only kinetic energy and potential energy which are oscillating. Total energy does not oscillate. It remains constant. Do not forget this. So finally to summarize we have this point students. E total energy is constant all the time. K of T means kinetic energy and U of T means potential energy. Continuously repeat after a period of T/2. Period of oscillation is T. तो याद रखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का पीरियड ऑसिलेशन से हाफ होता है. पीरियड हाफ होता है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर न्यू है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 2 न्यू. तो फ्रीक्वेंसी डबल होती है, टाइम पीरियड हाफ होता है. सो स्टूडेंट्स देयर वी फिनिश ऑल द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जितने पॉसिबल थे. अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो और भी कुछ ग्राफ्स आएंगे, लेकिन वो ग्राफ को उस टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्टली मैं वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा. वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आई हैव एक्सप्लेन. दिस इज अ बिट लेंथी वीडियो. यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स टू बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स related to simple harmonic motion very well in JEE and NEET. So please see this video again and again. If you have any confusions, you can always feel free to discuss with me. See you soon in my next video.